Narayan. In this video, I have taken up a very popular event to discuss, and this event is from Valmiki Ramayana, which is the event is the fire trial of Bhagavati Sita. And the purpose of this video is to bust the myth that people across India and even some people outside India deem Sri Rama as a woman hater, as a misogynist, and they deem that Sita, Bhagavati Sita, had to undergo a lot of oppression and a lot of difficulties while being married. So this is the version of the people who are actually looking at Valmiki Ramayana through a modern prism, which is absolutely absurd, I could say. The true interpretation comes only from Valmiki Ramayana and only from an accomplished guru who has actually studied the scriptures by his heart and has also extracted the hidden meanings of various scriptures, and which can only be acquired by sitting at the foot of the guru. So this is what is very, very important. So you cannot conclude, you and I cannot conclude anything on any of the maxims of the scripture by our own understanding. It requires a lot of backing and guidance of the scriptures in totality and of the guru as the foremost guidance. So I will tell you in crux in English what was the prime motive of the fire trial of Bhagavati Sita, and then I will elaborate this in Hindi. Now, just as the fire trial of Bhagavati Sita ends and fire god comes out with Sita outside, and then he uh, admonishes Sri Rama that your wife is absolutely faithful to you by through mind, body, and spirit. So you must accept her. She is one of the purest women, and that is why she did not get burned even by me. So that is why her vow of entering the fire has been successful. So you have to accept her. And then Sri Rama goes on to tell everyone, all the denizens of heaven, the earth, and the netherworlds, all of them are listening. And Sri Rama wanted to ensure that no one could actually point a finger at her, at his wife, at himself, and also at his own, at his illustrious lineage of Raghu or Kakutstha or Bhagirath or Sagar, Dilip, and many other kings, Dashrath. So he wanted his lineage to be pure, he wanted his name to be pure, and he wanted his wife's name also to be pure as molten gold. So he actually goes on to tell everyone that this fire trial of Sita was necessary because people have so many mouths, and later on, I don't want anyone to actually point a finger at her, pointing at her character that she has been violated by any other man except me. And even though she has lived in my enemy's house for a year, I could not have accepted her without this fire trial, because then people would actually call me being a lusty man. How can a king actually accept his wife who has lived in his enemy's house for a year? So people will actually condemn me, they will rebuke me, and they will deem me as a lusty man. That out of lust I have accepted my wife, even though she is impure. So, because people across the world, across all the three worlds, would actually point a finger and would not stop talking about this particular issue. No, people would have several doubts, and the doubt would never die. So I wanted someone who is completely out of this world, someone divine, to vindicate the purity and chastity of my wife. And none other than fire god is the one who vindicates her purity and chastity. So this is what Sri Rama wanted to uh, conveyed to all the inhabitants who had actually gathered there to listen to him, and so that his future, his wife's future, and his lineage's future would be secured from all obloki that had been attached to this event. No, the Ravan kidnapping Sita, and then she staying there for a year, and then Ram going there and winning her back through war. So this event in particular, this event of 1 year, people would never forget, and people would actually follow my conduct. And I am the king of Ayodhya, and people must not follow my conduct. I have to be pure first, and that is why I have to set an example, even at the cost of my own life, even at the cost of the uh,
the difficulty that my wife is facing right now, undergoing the fire trial. So he actually tells everyone that this was to protect the future assassination of character of my wife and of myself and of my lineage, these three in particular, that I wanted Sita to undergo this fire trial, and that is why I kept quiet all the way when she was actually entering fire. And then he proclaims, Sri Rama proclaims that Bhagavati Sita, my wife, is inseparable from me, just as the rays of the sun are inseparable from the sun. She cannot be laid hands over by any man of malicious intent, lest he would be burned, because it is her prowess, it is the strength of her penance that she has acquired by her submission to Dharma, by her submission to me, unconditional submission to myself. And that is how she has actually, through her mind, body, and spirit, served me. And this is the penance of her life, which she has gathered, which she has acquired by her own self, own exertion. And this is why she is actually fire, and no man can touch her with malicious intent, otherwise he would get burned immediately. So this is what Sri Rama proclaims in front of all the denizens of all the three worlds. So this is the real story of why Bhagavati Sita underwent the fire trial. This is taken directly from Valmiki Ramayana without any twist of all any of the shlokas. ये जो प्रसंग मैंने इस वीडियो के लिए लिया है वो बहुत ही प्रख्यात प्रसंग है। ये भगवती सीता का जो अग्नि परीक्षा होती है वो प्रसंग मैं इस बार ले रहा हूँ, और ये इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत भारत में बहुत जन है जो शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं है, मगर उनको सब पता है। शास्त्र पढ़ते नहीं है मगर निर्णय पे तुरंत ही आ जाते हैं कि राम ऐसे हैं, सीता ऐसी है। तो ये उचित नहीं है। शास्त्र पढ़ने चाहिए और शास्त्र गुरु के माध्यम से पढ़ने चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसे गूढ़ रहस्य है जो हम डायरेक्टली पढ़ेंगे तो हमें भी नहीं मिलेंगे। तो गुरु के चरणों में बैठ के गुरु जब हमको ज्ञान देंगे तभी ही हमें शास्त्र का पता, शास्त्र के सार का पता चलता है। सार तो विलुप्त ही हो जाता है। हम सामान्य बुद्धि से अगर पढ़ेंगे तो हमें सार हमें नज़र में नहीं आएगा, हमें नहीं दिखेगा, हमारे मन मस्तिष्क में भी नहीं आएगा। वह अपने आप को अभिव्यक्त भी नहीं करता है, वो केवल और केवल गुरु को ही अभिव्यक्त करता है। और फिर गुरु के माध्यम से हमें जब पता चलता है तब हमें ज्ञात होता है कि ये जो मैंने पढ़ा था उससे तो ये बिल्कुल बहुत ही दिव्य है, भव्य है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये ज्ञान केवल गुरु के पास से ही आता है। और ये वीडियो इसीलिए खास ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही ये जो प्रसंग है इसकी बहुत चर्चा होती है और फिर सभी निर्णय पे आ जाते हैं। घरों में चर्चा होती है, कहीं सब मिले हैं प्रसंग में तभी सब चर्चा होती है। कोई शास्त्र कर रहा है, उन दोनों के बीच में भी कभी चर्चा होती है, मगर इसका जो मूल स्वरूप है, मौलिक स्वरूप है, इसका सार है, वो हमें शास्त्र और गुरु के माध्यम से ही पता चलता है। और लोग क्या करते हैं कि ये सब प्रसंग को बहुत ही चर्चित करते हैं, आपस में चर्चा करके फिर अंत में वह एक ऐसे निर्णय पे आ जाते हैं जो उनकी दृष्टि से उनको लगता है कि श्रेष्ठ है, मगर उनकी दृष्टि की सीमा उनको नहीं पता होती है। तो वो तो शास्त्र ही बताता है कि भाई हमारी जो देखने की दृष्टि होती है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। ज्ञान अज्ञान उसकी सीमा जो होती है वह शास्त्र और गुरु ही निर्धारित करते हैं। हम अगर मैं अगर कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ तो कोई मानेगा ही नहीं। क्यों मानेगा? नहीं भी मानना चाहिए। अगर कोई स्त्री ऐसी कहे कि मैं चरित्रवान हूँ तो कैसे माने? मगर उसका चरित्र देखा जाना चाहिए, वर्षों से उसका चरित्र देखा जाना चाहिए। और पुरुष जो बोलता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो वो जब कुछ बोलता है तभी पता चलता है कि इनमें कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है, तभी पता चलता है। तो ऐसे धीरे धीरे हमें प्रमाण मिलता है। तो स्व प्रमाण मान्य नहीं है हमारे शास्त्र में। वह बहुत ही बड़ी बात है कि स्व प्रमाण यहाँ पर भगवती सीता का भी मान्य नहीं कहा गया था, श्री राम का भी प्रमाण नहीं माना गया था। उन्होंने भी अग्निदेव को बुलाकर प्रमाण मंगवाया, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि लोग सामने वाले का प्रमाण मानते ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं कुछ अच्छा बोलता हूँ, 1 घंटा बोलता हूँ, तो भी लोग नहीं मानते। मगर कोई दूसरा आकर
कभी कुछ बोल दे, अगर मुझसे भी अधिक ज्ञानी आकर कोई अगर बोल दे कि हाँ ये इसमें थोड़ा ज्ञान है, तो फिर सामने वाले मानने लगते हैं। ये स्वभाव है। तो ये श्री राम ने यही किया है कि स्वयं अग्निदेव से ये प्रमाण दिलवाया तीनों लोकों के लोगों के लिए कि भविष्य में आगे कोई उस पर उंगली न उठा सके। तो इसीलिए ये सब किया गया था। तो लंका में जब युद्ध समाप्त होता है, रावण मर जाता है और तुरंत ही भगवान राम ने पहला काम ये किया है। पहला काम ये नहीं है कि सीता को मैं मिलने जाऊं, पहला काम उन्होंने यही किया है कि विभीषण को वहां पर राजगद्दी पर बिठा दिया, उनका राज्य अभिषेक करवा दिया गया लक्ष्मण के द्वारा, क्योंकि वह स्वयं उन्होंने प्रण लिया था कि 14 वर्षों तक वो कहीं नगर में भी प्रवेश नहीं करेंगे। तो किष्किंधा में जब ही सुग्रीव का राज्य अभिषेक होता है तो तभी भी लक्ष्मण ही जाते हैं, वह पंपा लेक सरोवर में बाहर रहते हैं, और लंका में भी वह लंका के जो गेट होता है उसके बाहर रहते हैं, और भीतर केवल लक्ष्मण जाते हैं और विभीषण का राज्य अभिषेक करके आ जाते हैं। तो ये इनकी उदारता देखनी चाहिए कि पहला काम उन्होंने विभीषण को अपनी राजगादी उनको बिठा दिया, राजा घोषित कर दिया लंका का। फिर तुरंत ही उन्होंने हनुमान को भेजा कि आप विभीषण की अनुमति लेकर तुरंत ही जाइए भगवती सीता के पास, उनको कहिए कि मैं लक्ष्मण सुग्रीव सब कुशल मंगल है, हम युद्ध जीत चुके हैं, रावण की मृत्यु हो चुकी है और अभी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभीषण हमारे मित्र ही है, तो आप निश्चिंत हो जाइए और उनका क्या संदेश है वह लेकर आइए। तो वह तुरंत ही जाते हैं और संदेश देते हैं, और भगवती सीता उनको कहती है कि मुझे अभी के अभी ही प्रभु श्री राम को देखना है। ये संदेश लेके हनुमान आते हैं और श्री राम उनको सुनते हैं, और फिर वह तुरंत ही विभीषण को कहते हैं कि कृपा करके आप जाइए स्वयं और सीता को कहिए कि आप आज वो पहले पूरी तरह से स्नान कर ले, सिर से लेके पैर तक पवित्र जल से स्नान करे और दिव्य वस्त्र आभूषण पहन के तुरंत ही मेरे पास सज धज के आ जाए। तो ये उनकी अनुमति, उनकी आज्ञा थी, और विभीषण तुरंत ही जाते हैं और ये सूचना देते हैं भगवती सीता को, दोनों हाथ जोड़ के सूचना देते हैं। और सीता कहती है कि नहीं, मुझे अभी ही देखना है, मुझे नहाना नहीं है। तो विभीषण कहते हैं कि नहीं, ये आपके पति की आज्ञा है, तो कृपा करके आप इसका पालन कीजिए। और फिर वह मान जाती है, और फिर स्नान करके सज धज दिव्य वस्त्र आभूषण जो विभीषण ने दिए होते हैं वो पहन के आती है, एक डोली में आती है। विभीषण आगे चल रहे हैं, डोली पीछे पीछे आ रही है, और फिर श्री राम जहाँ है बाहर, वहां से थोड़ी दूर वहां पर डोली को उनको श्री राम कहते हैं कि वहीं आप उनको रोक दीजिए। और सीता माँ को देखने के लिए बहुत सारे लोग उमड़ पड़े हैं। बहुत सारे भिन्न भिन्न वानर हैं, भालू है, जो राक्षस जो बच गए थे लंका के अंदर, जो वृद्ध राक्षस है, वहां की सब महिलाएं सब आए हैं देखने, क्योंकि सबको देखना था कि ये अलौकिक सुंदरता वाली सीता कैसी है। किसी ने देखा ही नहीं था, और सबको पता था कि ये लौकिक नहीं पर अलौकिक सुंदरता है भगवती सीता की, तो हमें देखना है। तो बहुत उत्सुकता और कुतूहल के वश होकर सब लोग देखने के लिए आए हैं। और श्री राम और जब देखते हैं डोली आ गई है और फिर बहुत भीड़ हो जाती है, तो विभीषण क्या करते हैं कि सभी को धक्का मारकर दूर करते हैं, और फिर श्री राम विभीषण को कहते हैं कि आप इनको धक्का मत मारिए, ये सब हमारे ही लोग हैं, तो कृपा करके सीता को डोली में से वहीं पे उतर के चल के मेरे समक्ष आने की अनुमति की आज्ञा दीजिए, उनको कहिए कि मैंने उनको कहा है। और ये सुन के ही विभीषण, लक्ष्मण और सुग्रीव ये तीनों बहुत ही विचलित हो जाते हैं। तीनों के मन में बहुत ही शंका उत्पन्न होती है, और ये सोचने लगते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है कि स्त्री को कभी खुले में रखना चाहिए। तो श्री राम उनको कहते हैं कि आप उनको लेके आइए। फिर वो राम घोषणा करते हैं, एक सूत्र भी हमें पता चलता है इसके माध्यम से कि जब भी कोई युद्ध चल रहा हो, जब भी कोई प्रसंग हो बड़ा, जब भी कोई बड़ा यज्ञ हो आयोजित किया गया हो, और आपत्ति काल हो, और या तो स्वयंवर हो, उस समय में ही, उसी समय में ही स्त्री को स्वतंत्र रूप से घूंघट उठा के आ सकती है, अपना घूंघट खोल के चल सकती है। अन्यथा बाकी सब समय में नहीं, घूंघट को डाले हुए ही रहना। तो ये श्री राम घोषणा करते हैं। तो फिर भगवती सीता धीरे धीरे नीचे चल के फिर समक्ष आती है, समीप आती है, और वह
पूर्णिमा के चंद्र समान जिनका मुख है, श्री राम को वह निहारती है, ऐसे निहारती है कि मानो अपनी आंखों से ही उसको वश में कर ले, उनको खा ले, इतनी उत्सुक है, क्योंकि 1 वर्ष बीत गया है उनको देखे हुए, और वह देख रही है, निहार रही है। श्री राम भी उनको देख रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं दोनों की आंखों से। और फिर श्री राम वह उनको कहते हैं जो उनको कदाचित पसंद नहीं आता है, जो लोग भी सब सुनते हैं, और श्री राम उनको ये कहते हैं कि सुनो सीता, मैंने अभी युद्ध जीत लिया है, ये मैंने आपको जीत लिया है, मैं आपका पति हूं, तो मैंने आपको ही जीत लिया है, और रावण की मृत्यु हो चुकी है। मगर आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो मैंने प्रयास किया, मैंने वानर सेना आरंभ की, सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव और विभीषण के माध्यम से मैंने ये पुल बांधा, और फिर हम सब यहाँ पर आए, और ये करने के पीछे मुख्य कारण यही था कि मेरे नाम के आगे जो दाग लगा था कि मेरी पत्नी को कोई चोरी करके लेके गया और मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय कभी चुप नहीं बैठता है, तो मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं अगर हार जाता तो मेरे नाम के आगे दाग सदा लग जाता, मुझे मुझे वो नहीं चाहिए था। और उसके उपरांत मेरे जो वंश है, दिव्य वंश है मेरा, सूर्यवंशी हूँ मैं, तो उस पर कोई दाग मुझे नहीं लगने देना था। तो इसीलिए मैंने ये युद्ध जीता है और रावण को परास्त किया है। मगर आपका जब अपहरण हुआ था, तब रावण ने आपको खींच के लेके गया, उनके आलिंगन में आप आई थी, उन्होंने आपको स्पर्श किया है, और आप 1 वर्ष तक रावण के महल में रही है, उनके नगर में रही है। तो कोई भी धर्मवित पुरुष, क्षत्रिय, खास करके मैं जब राजा हूं, तो मैं ऐसी स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता हूं जो मेरे शत्रु के महल में 1 वर्ष तक रही हो। मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अगर मैं स्वीकार करूंगा तो लोक निंदा होगी बहुत ही, मैं ऐसा स्वीकार कदापि नहीं कर सकता हूं, और लोग क्या कहेंगे मुझ पर। तो ये मुझे आपके चरित्र पर विश्वास अभी नहीं है, क्योंकि आप वहां रही थी 1 वर्ष तक, तो आप अभी स्वतंत्र है पूरी रूप से। आप यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे पुरुष है, आप किसी को भी अपना वर चुन सकती है, या तो आप कहीं भी विचरण कर सकती है। तो मैं आपको अपनी जो मेरी पत्नी का जो धर्म था आपका, तो उससे मैं आपको मुक्त करता हूँ। ये सुन के ही फिर भगवती सीता रो रही थी और रोने लगी, और लक्ष्मण भी रो रहे हैं, श्री राम भी रो रहे हैं। श्री राम सामने नहीं देख रहे हैं, वह भूमि पर देखकर रो रहे हैं। सुग्रीव और विभीषण दोनों वो भी रो रहे हैं, और पता नहीं चल रहा है कि क्या है। प्रभु में क्रोध भी है और बहुत ही ग्लानि भी है, दोनों भाव एक साथ आए हैं। तो वो बहुत ही उदास है, उनको पता नहीं चल रहा है क्या होना चाहिए, मगर वो केवल और केवल भूमि की तरफ ही देख रहे हैं, ऊपर नहीं देखते हैं। और भगवती सीता फिर उनको कहती है, वह थोड़ी सी कुपित हो जाती है, वो कहते हैं कि प्रभु आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप एक सामान्य पुरुष जब सामान्य नारी पर जैसे लांछन लगाता है, वैसे ही आप मुझ पर लांछन लगा रही है। आप कदाचित भूल गए हैं कि मैं केवल नाम से वैद्य ही हूँ, मैं नाम से जनक नंदिनी हूँ। मेरा मेरा जो मेरे सही में पिता है, मेरी उत्पत्ति उनसे नहीं हुई है, मैं तो अयोनिज हूँ, मैं योनि से उत्पन्न नहीं हुई हूँ, मैं उनकी भूमि से उत्पन्न हुई, तो मेरा जन्म भी दिव्य ही है। ऐसा आपने सोचा क्यों नहीं? और आपने मेरे साथ इतने वर्ष बिताए हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए कि मैंने मन, वाणी और शरीर से आपको ही अपना देवता ही माना है। मेरे मन में, मन, वाणी और शरीर के से मैंने आपको ही अपना देवता माना है, परमेश्वर माना है, और मेरे मन में भी किंचित मात्र कोई अन्य पुरुष का विचार भी नहीं आया है, एक क्षण भी नहीं आया है। तो इस पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य ही बोल रही हूँ। और मेरा चरित्र जो है वो ही प्रमाण आपको दे सकता है, जो पिछला चरित्र है जो मैंने आपके साथ में जिया है, और अयोध्या में भी सबको पता है, ऋषि मुनियों को पता है, तो उसका आप क्यों नहीं वो सब ध्यान में रखते हुए फिर आप मुझे ऐसे संबोधित करें। तो श्री राम कुछ कहते नहीं है, और फिर भगवती सीता समझ जाती है कि उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। और फिर भगवती सीता बहुत ही रोती है, और वह फिर लक्ष्मण को कहती है कि लक्ष्मण जल्दी से यहाँ पर एक
चिता खड़ी कीजिए, उसमें अग्नि को जलाइए, अग्नि से प्रज्वलित कर दिए वो चिता को, और मैं उसी में प्रवेश कर जाऊंगी, क्योंकि मैं अगर मेरे पति की नहीं रही तो मेरे लिए मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अगर श्री राम मेरे आचरण से प्रसन्न नहीं है तो मेरे लिए तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, अन्य कोई पुरुष के तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो जीवन ही नहीं जीना चाहती हूँ, अकेले भी नहीं, क्योंकि अगर प्रभु श्री राम के पास मैं अगर जीऊंगी तो ही जीऊंगी, नहीं तो मैं मृत्यु को ही समर्पित हो जाऊंगी। तो ये उनका निर्णय सुन के फिर लक्ष्मण प्रभु श्री राम की तरफ देखते हैं। उनकी मुखाकृति से पता चल जाता है कि उनकी अनुमति है, नहीं भी है और है, मगर लक्ष्मण समझ जाते हैं कि इस बार कोई कुछ बोलेंगे नहीं, और बहुत ही क्रोध में होते हैं। तो कोई ऐसा साहस भी नहीं करता है, विभीषण भी नहीं और सुग्रीव भी नहीं, लक्ष्मण भी नहीं, कि मैं भैया को समझाऊं, क्योंकि बहुत क्रोध में होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इस समय उनको छेड़ना, चेष्टा करनी ये उचित नहीं है, और इसलिए वह उनका संकेत समझ के फिर वह उधर ही चिता जला जला देते हैं, चिता खड़ी करके जला देते हैं और अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। और भगवती सीता फिर प्रभु श्री राम की प्रदक्षिणा करती है, वह अपने पति को परमेश्वर ही मानती है अभी भी। और उसके बाद तुरंत ही अग्नि के पास आकर फिर वो अग्निदेव से प्रसन्नता पूर्वक वह एक प्रण लेती है, एक व्रत व्रत कह सकते हैं, प्रण कह सकते हैं। तो वो कहती है कि अगर मैंने मेरे मन वाणी शरीर से मेरे पति को ही परमेश्वर के रूप में पूजा है, और मेरे पति के अतिरिक्त और कोई पुरुष का विचार मेरे मन में भी नहीं आया है एक क्षण के लिए भी, तो हे अग्निदेव, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करे। ये कहकर फिर वह प्रवेश कर गई, और जब ही प्रवेश करती है तो बहुत लोग चिल्लाते हैं, सब महिलाएं हैं, वो देख रही है कि इतनी सुंदर नारी, अलौकिक सुंदरता, इतनी युवान, और वो बेचारी अग्नि में जा रही है, वो देख नहीं पाते हैं। सभी लोग रो रहे हैं, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, श्री राम, और सब लोग रो रहे हैं। और ये देखते ही तुरंत ही ब्रह्मदेव आ जाते हैं, सभी सिद्धों को लेकर, चारणा को लेकर, गंधर्व विद्याधर सब आते हैं, महादेव भी आते हैं, और चारों दिक्पाल आते हैं, वायुदेव आते हैं, और सभी देवता आते हैं, सभी ऋषि देवता सभी आकाश मार्ग में आकर फिर प्रभु श्री राम को कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए, आप पहचानिए कि आप वह अनादि नारायण हैं, जो सबसे पुराने हैं, अनादि है। आपका तो आरंभ ही नहीं है, अंत भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, तो आप वही हैं। आप अपने आप को पहचानिए, और भगवती सीता भी आपकी दिव्य पत्नी लक्ष्मी है, तो आप उनको कृपा करके पहचानिए। आप ये सामान्य पुरुषों वाली चेष्टा न कीजिए। और श्री राम कहते हैं कि नहीं, मैं तो केवल दशरथ राजा से उत्पन्न हुआ पुत्र हूं, और मेरा नाम राम है, इतना मैं जानता हूं। अगर आप मेरा वास्तविक स्वरूप जानते हैं तो आप मुझे बताइए, ब्रह्मदेव को कहते हैं। तो ऐसे ही उनसे स्तुति करवाते हैं प्रभु श्री राम। ये लीला है, हमको लीला के रूप में ही देखना है, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वह मनुष्य शरीर में भले रहे, मगर उनका मन है वो ब्रह्म में ही होता है, उनका वो मनुष्य शरीर वाला, मनुष्य विचारों वाले नहीं होते हैं। तो ये हमें लीला के रूप में देखना है। और ब्रह्मदेव और सभी ऋषि बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जिसके द्वारा उनको याद दिलाते हैं कि आप ही त्रिविक्रम थे, आप ही मत्स्य थे, आप ही कछुए के अवतार में थे, आप से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सत्य आप ही हो, आप ही सत्य का मूल हो। तो ऐसे सुंदर स्तुति करके फिर स्तुति अंत होती है, और फिर अंत होते ही अग्निदेव प्रकट होते हैं, वह चिता में से ही भगवती सीता को लेकर। और मानो भगवती सीता पहले से ही सुंदर हो गई है, वह कुंदन हो गई है, मानो के गोल्ड में तो थोड़ी इम्प्योरिटी होती है, सोना जो हम लेते हैं मार्केट से उसमें इम्प्योरिटी होती है, तो मगर वो इम्प्योरिटी को पूरा निकाल दे, और मोल्टन गोल्ड जिसको कहते हैं, जैसे सोने को गर्म करने के बाद जो जो कुंदन बनता है, तो वह कुंदन के साथ उनकी तुलना की गई है भगवती सीता की। तो एकदम पवित्र, एक छोटी सी इम्प्योरिटी नहीं, तो ऐसा उनका वर्णन है।
और अग्निदेव समक्ष आते हैं प्रभु श्री राम को, फिर वो आदेश देते हैं कि सुनो प्रभु, ये आपकी पत्नी है और ये सत्य बोल रही है, जो बोला है उन्होंने ये सत्य ही है। मन वाणी शरीर से इन्होंने आपको ही अपना परमेश्वर माना है और आपको ही पूजा है, और आजीवन इनके मन में आपके अतिरिक्त और कोई पुरुष का विचार आया ही नहीं है। अगर आया होता तो वो जल जाती, नहीं आया है, नहीं जली, इसका अर्थ ही ये है कि इनके मन में कोई विचार ही नहीं है, ये आपको ही समर्पित है पूरे रूप से, मन वाणी शरीर से ही, तन मन धन से सब कुछ आपको ही दे दिया है, सर्वस्व आपको दे दिया है। तो कृपा करके आप इसका स्वीकार कीजिए। मैं इसके पातिव्रत धर्म की पुष्टि करता हूँ। ऐसी नारी तो युगों युगों में आएगी भी नहीं, कदाचित आएगी ही नहीं, ऐसी नारी है ये भगवती सीता। और प्रभु श्री राम फिर उनको स्वीकार करते हैं और फिर प्रभु श्री राम तुरंत ही कहते हैं कि मैंने ये क्यों किया आप सभी को बताता हूँ। अभी आप सुनिए कि तीनों लोक के लोग सब यहाँ पर आए हैं, स्वर्ग लोक से आए हैं, पृथ्वी लोक से हैं, नीचे के लोकों से भी लोग आए हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। प्रभु श्री राम तभी घोषणा करते हैं कि मुझे पता है कि सीता कैसी है, मुझे पता है कि उनका चरित्र कैसा है। ये क्यों आवश्यक था, अग्नि परीक्षा क्यों आवश्यक थी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आगे जाके पृथ्वी तो नहीं, तीनों लोकों में कोई भी मनुष्य मेरी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाए। मुझे नहीं चाहिए था, ना तो मुझ पर लांछन लगाए कि मैं ऐसा हूं, मैं कामी हूं और काम के वश में आकर मैंने ऐसी पत्नी को स्वीकार कर लिया जो मेरे शत्रु के घर में 1 वर्ष रही है। तो मुझ पर भी लांछन न लगे और मेरा जो सूर्य वंश है उस पर भी कोई दाग नहीं लगना चाहिए, और मेरी पत्नी पर भी कोई न कह सके आगे जाके, कोई भी नहीं। इसीलिए ये अग्नि परीक्षा आवश्यक थी। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये जानता हूं कि सीता मुझसे अविभाज्य है, जैसे सूर्य की रश्मियां सूर्य से अविभाज्य है, वैसे ही मैं और सीता हूं। मुझे पता है सीता का चरित्र कैसा है। अगर कोई पुरुष हीन भाव से उस पर स्पर्श करने का प्रयास भी करे तो वो वहीं जल जाएगा, क्योंकि सीता ने स्वयं अपने सामर्थ्य से, अपने तप से, और वो तप क्या था? समर्पण का तप। मुझे वह समर्पित थी, धर्म को समर्पित थी, अपने स्वधर्म को समर्पित थी, और ऐसा उन्होंने समर्पण से तप प्राप्त किया है कि वह स्वयं अग्नि है। उनको ऐसे भी कोई अगर स्पर्श करे हीन भाव से तो वह पुरुष वहीं जल जाए। तो मुझे ऐसा पता है इनका सामर्थ्य कैसा है, और ये पुष्टि के लिए ही मैंने कुछ कहा नहीं जब सीता प्रवेश कर रही थी। मुझे पता था कि ये क्या होने वाला है, सीता को कोई जला ही नहीं सकता है, और इसीलिए मुझे अग्निदेव का प्रमाण चाहिए था कि ऐसा कोई दिव्य देव आए जो प्रमाण दे मेरी पत्नी के पातिव्रत धर्म का। तो अग्निदेव का प्रमाण बहुत पर्याप्त है तीनों लोकों में, आगे जाके युगों युगों में भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कथा तो कल्प पर्यंत रहेगी। तो आगे जाके भी कोई भी ऐसा मायका लाल उंगली न उठा सके मुझ पर, सीता पर, मेरे पूरे वंश पर। तो ये इनका कारण था प्रभु श्री राम का अग्नि परीक्षा करवाने का। उनको पता था, वह तो अविनाशी है, उनको तो भविष्य भी पता है। तो उनको पता था कि क्या क्या होने वाला है, सीता कभी जल ही नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई अन्य पुरुष की कोई कुछ सोचा ही नहीं है। तो इसका ये अर्थ वाल्मीकि रामायण से डायरेक्टली मैंने आपको कहा है। तो ये एक सेटल्ड कंक्लूजन है। अभी इसमें हम और अगर कोई मॉडर्न दिमाग वाले आके फिर वो करे कि नहीं नहीं ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा है, तो फिर उसका प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अगर आपके सर्कल में ऐसा कोई अगर है जिस वो नहीं मानता है तो उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। तो यही मैं अब अंत करता हूं, और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, और आपको सीधा ही ज्ञान आपको मिलेगा। शिव शंकर प्रलयंकर।